Honorable Prime Minister Ji. I'm Lavanya, the team leader of Hack Dreamers. And we are at our nodal center, IIT Kharagpur, West Bengal. And we are from Chennai Institute of Technology, Tamil Nadu. The problem statement we have chosen is given by National Technical Research Organization. As in a technological innovation increasing day by day, the cyber attacks were also increasing. As per our record, in 2023, there were 73 million cyber attacks were occurred in India, which is the third largest among the world. To tackle the situation, we have come up with an innovative, unique and a scalable solution. Our solution will be explained by my teammate, Ms. Kalpriya. Namaste, Honorable Prime Namaste ji. Namaste. To detect the infected files, most of the cyber securities are in our nations. To strengthen our defense, we are using multiple antivirus engines. There are 3 engines we used like Microsoft Defender, ESCT and Trend Micro Maximum Security. Our solution is completely offline and on-premise, including the architecture design and the threat detection. As we know, no single antivirus is perfect. Each antivirus has its own strength and its weakness. So we using Microsoft Defender, ESCT and Trend Micro to tackle this challenge. We scan using these 3 AVs by parallelly scanning in efficient way. It also avoids the threat detection and maintains our system in safe mode. अभी मैंने मन की बात में सामान्य लोग जो मुसीबत झेल रहे हैं उसकी विस्तार से चर्चा की थी। किस प्रकार से इंडिविजुअली साइबर फ्रॉड के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है, इसका आप लोगों को पता है? नहीं सर। क्योंकि आप जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और मैं मानता हूं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज ऐसे संकटों में फंस जाता है। ये नौजवान कुछ कहना चाहते थे? जी हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, वही टेक्नोलॉजी बढ़ने से लाइक अच्छा टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम हमारा साइबर अटैक्स का भी वो से भी देखना पड़ता है। तो उस मामले से हम लोग उस सॉल्यूशन को अब बेटर एफिशिएंट और इम्प्रूव कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से हम और एफिशिएंटली और इम्प्रोवाइज करके हम लोग जो सॉल्यूशन रख रहे हैं वो करंट सॉल्यूशन से बेटर होगा। आप लोगों को पता है कि साइबर सिक्योरिटी के किसी भी आपके प्रयास की उम्र बहुत छोटी होती है, इसका अंदाज है आप लोगों को? जी हाँ सर। क्या क्या अंदाज है, बता सकते हैं? हम लोगों को लाइक अपडेट करना पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी यस यू आर राइट, क्योंकि हम लोग अपडेट होना। साइबर अटैक में अटैक करने वाले इतने इनोवेटिव होते हैं कि आप एक सॉल्यूशन आज निकालोगे, 4 घंटे में नए सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। आपको हमेशा अपडेट करना पड़ता है। देखिए, भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी में से एक है। हमारा देश बड़े पैमाने पर डिजिटली कनेक्ट हो रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम का खतरा भी, जैसा आप लोगों ने कहा, ये लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जिस सॉल्यूशन पर आप काम कर रहे हैं ये भारत के फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये वन टाइम सॉल्यूशन नहीं होता है। ये आपको हर समय, जैसे जितनी बार बारिश आए उतनी बार छाता खोलना पड़े, ऐसा है ये। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके सॉल्यूशन जरूर मेरे सामने आएंगे और सरकार को भी बहुत इसका लाभ हो सकता है। मैं सभी आपके साथियों को मैं देख रहा हूं, पूरी आपकी टोली बड़ी उत्साह से भरी हुई है
सब लोग अपने मोबाइल फोन से इसका रिकॉर्डिंग भी करते नजर आ रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अगली टीम कौन है? हम इंटरेक्ट करेंगे टीम कोड ब्रो के साथ, जो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में बैठा है। ओवर टू अहमदाबाद। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। So my name is Harshit and I am representing the team BroCode. Here we are going to developing the problem statement of ISRO. Our problem statement is enhancing the darker images of the solar panel, solar pole, which is located in the South. So we are going to develop this solution by coming the name the Chandvardhani. Chandvardhani is a solution where we can able to enhance the darker images into the higher quality of the image. So it is not only the image quality enhancer, it is also the decision making skill. In the decision making skill, we are going to detect the craters, boulders, and also the real time site selection also, sir. आप कभी ये स्पेस की दुनिया में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में आप लोग बैठे हैं, वहां तो बहुत बड़ा सेंटर है स्पेस का, कभी वहां जाकर के उन लोगों से कोई चर्चा करके इश्यूज क्या है, क्वालिटी रिजल्ट के लिए क्या करना है, कुछ चर्चा की क्या? I had talked with the mentors and also the scientists among Hyderabad, but I had not reached the any centers like this because we are far away from the Andhra Pradesh. अच्छा, क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से हम चंद्रमा की जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन को और अधिक बेहतर ढंग से जान पाएंगे क्या? Yes, sir. Of course, we can able to detect the geological, uncover hidden features of the geological lunar exploration, sir. Example like we can able to detect the frozen bodies of water bodies, and also we can able to detect the craters and boulders. Boulders is nothing but the bigger stones or as the bigger particles around the moon surface, so that we can able to land the rover very smoothly by detecting these boulders and the craters. अभी आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? 6 members, 6 members are working in the teammates. सब अलग अलग जगह से इकट्ठे आए या आप यहीं पर से पढ़ करके निकले हैं? In the problem statement, we had divided the task to all the members. The 3 members are doing the machine learning models, and the 2 members are doing upon the denoising filters for enhancing those images, sir. And now my teammate Sunil will continue the conversation, sir. देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को चुना। कुछ कह रहे थे आप? नौजवान कोई और माइक ले रहे थे? Sir, we are from Andhra Pradesh. I don't know Hindi too much. Andhra Garu. Sir. Sorry for the interruption. हाँ, बताइए। Namaste, Pradhan Mantri ji. Namaste. I am Sunil Reddy Sarnala from Andhra Pradesh. We are team Code Bro. We are working on a machine learning model where we can enhance the images from the south pole of the moon. And these images can be enhanced by machine learning model where we are using 2 architectures. One is DarkNet and another one is PhotoNet. DarkNet is used to remove the shadow of the images, and PhotoNet is used to reduce the noise of the images. While taking the image from the south pole of the image, there will be low light conditions, and also there will be high noise due to the low photons. So we are enhancing that image by using the neural networks. And those neural networks will be having the 1024 neurons each. And Harshit actually mentioned that there is a chance in the best case we can detect the frozen water bodies also. And I am very happy to speak with you, sir. And it was always my dream to talk with you. And you came to Nellore also. I am far in the crowd. I am always seeing and shouting like I am very biggest fan of you, sir. Thank you. Thank you for giving this opportunity, sir. देखिए साथियों, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की यात्रा को दुनिया बहुत उम्मीद से देख रही है। आप जैसे यंग ब्रेन्स जब इससे जुड़ते हैं तो उम्मीद और बढ़ जाती है। आप जैसे यूथ इनोवेटर्स को देखकर साफ है कि भारत ग्लोबल स्पेस पावर के तौर पर तेजी से अपनी भूमिका का विस्तार करेगा। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आइए, अब नेक्स्ट टीम कौन है? अगली टीम मिस्टिक ओरिजिनल्स, ये विलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च मुंबई के हैं।
मुंबई की मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मेरा नाम महक वर्मा है और मैं टीम मिस्टिक ओरिजिनल्स की टीम लीडर हूँ। हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा से हैं and it is an absolute honor to be here at Smart India Hackathon 2024 with my amazing team comprising Akshay Jangra, Kratan Agrawal, Sumit Kumar, Avinesh Rathore, Tushar Jain and our mentor Ananya Srivastav. हम लोग एक सिक्योरिटी चैलेंज को टैकल कर रहे हैं जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा दिया गया है, which is microdoppler based target classification. That is to distinguish कि एक given object ड्रोन है या फिर बर्ड है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अक्सर बोथ ड्रोन्स एज वेल एज बर्ड्स दे अपीयर सिमिलर ऑन द रडार, जिसकी वजह से इट मे लीड टू फॉल्स अलार्म्स, इनएफिशिएंसीज एंड अदर पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स, स्पेशली इन सेंसिटिव एरियाज जैसे मिलिट्री जोन्स, एयरपोर्ट्स एंड अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स. एंड thus our aim is to develop a solution which processes advanced radar data using machine learning algorithms to accurately classify कि एक given object drone है या फिर bird है. To tell more about the solution, I would like to hand over to my teammate Akshay. नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मेरा नाम अक्षत है और मैं टीम मिस्टिक ओरिजिनल्स का सदस्य हूँ। So sir, our solution works by using microdoppler signatures, which are the unique patterns generated by different objects. These can be due to the wing beats of birds or the rotor blade movements of drones. तो इसे हम फिंगरप्रिंट्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे हर ह्यूमन बीइंग के अलग फिंगरप्रिंट होते हैं, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट एक अलग माइक्रोडॉपलर सिग्नेचर देता है, जिसकी मदद से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक ड्रोन है या फिर बर्ड है. एंड दिस डिफरेंशिएशन इज वेरी क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग एनी डिसरप्शंस in areas like airports, borders and military zones where there is a lot of need for security. So if I talk about how our system works, आपको इतना डिफरेंस पता चलेगा कि भाई नहीं ये बर्ड नहीं है लेकिन ड्रोन है, लेकिन क्या आप ये भी बता पाएंगे कि कितने डिस्टेंस पर है, किस दिशा में जा रहा है, कितनी गति से जा रहा है, ये सारी चीजें इसमें मैप कर पाएंगे आप? हाँ जी सर, हम इस पर भी काम कर रहे हैं और हम जल्दी ये चीज भी कर पाएंगे. आप लोग जो ड्रोन का पता लगाने वाले सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ड्रोन्स के बहुत से पॉजिटिव यूज है, लेकिन कुछ ताकतों द्वारा गलत इस्तेमाल के कारण ड्रोन सिक्योरिटी के लिए चुनौती भी है. आपकी टीम इस चुनौती से कैसे निपटेगी? सर, जैसे हमारा सिस्टम है, अगर मैं आपको उसकी वर्किंग समझाऊं तो सबसे पहले हमारे पास जो रेडार से डेटा आता है, हम उसमें से सारी नॉइज को निकालते हैं टू गेट अ क्लीन एंड एक्यूरेट डेटा. फिर उस पर हम कुछ टाइम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म्स लगाते हैं जो ये माइक्रो डॉपलर पैटर्न जनरेट करता है, और फिर हम इन पैटर्न्स को एक मशीन लर्निंग मॉडल में फीड करते हैं जो बताता है हमें कि ये ऑब्जेक्ट एक ड्रोन था या बर्ड था. और हम इस चीज को काफी कॉम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइसेस पर भी यूज कर सकते हैं, और ये सिस्टम काफी स्केलेबल है, और इसके साथ साथ ही ये काफी अडेप्टेबल भी है अलग अलग एनवायरनमेंट्स के लिए, जिसकी वजह से हम इसे एयरपोर्ट्स और बॉर्डर एरियाज के ऊपर भी यूज